یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ رسول کی دو حیثیتیں ہیں. اچھا آپ دیکھو اب نئے مسئلے میں داخل ہو رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں تھا, خدا کی قسم وقت نہیں ہے. آج کا وقت اور کل کا 1 گھنٹہ یہی تو ہے, اور مجھے موضوع کو تلخیص دینا ہے. تو اب سنتے جاؤ آرام کے ساتھ. اب بہت زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا, لیکن بات پہنچ جائے. وہ لوگ جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں, وہ رسول کی رسالت کے منکر نہیں ہیں. خدا اب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. جنہوں نے کہا کہ رسول ہم جیسا بشر ہے, انہوں نے رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا, انہوں نے رسول کی نبوت کا انکار نہیں کیا, انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ نبی پر وحی آتی ہے. سب مان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, صاحب وحی الہی بھی ہیں, لیکن پھر بشر ہیں. تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں رسول جب ہدایت کرے جب رسول ہے, اور رسول اگر رشتہ داروں کے فضائل بیان کرے, بھائی بہت توجہ رہے, اگر اولاد سے محبت کا اظہار کرے تو یہ انسانی رویہ ہے, ہم جیسا بشر ہے. تو فقط ہدایت کے بعد رسول, باقی بشر. رکے رہنا, آج فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی کیا کہا کہ رسول ہم جیسا بشر ہے. پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچ جائے. کیا کہا؟ عقیدہ کیا بنا؟ رسول ہم جیسا بشر ہے. بن گیا نا عقیدہ. اچھا تو ہم نے کہا اچھا تو نبی نہیں ہے؟ کہ نبی ہے. کہا کہ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ہم بشر کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. نبی ہے. ہم نے کہا رسول نہیں ہے؟ کہا رسول ہے. ہم نے کہا قرآن اس پہ نازل نہیں ہوا؟ کہا ہوا. ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے بس بات کل اتنی ہے کہ تبلیغ کے وقت رسول ہے, باقی وقتوں میں بشر ہے. اگر اولاد کی فضیلت بیان کرے بشر ہے, اگر ناکہ بن جائے نواسوں کے لیے بشر ہے, بیٹی کے لیے اگر کھڑا ہو جائے بشر ہے, بھائی کو کندھے پہ بلند کرے بشر ہے. بھائی توجہ رکھنا, تو جب قرآن بیان کرے حدیث بیان کرے تو رسول ہے, ٹھیک ہے نا. باقی وقتوں میں بشر ہے. بھائی توجہ رکھنا, تو اب وراثت رسول کا فیصلہ رسالت سے نہیں ہوگا, بشریت سے ہوگا. پہنچ گئی؟ پہنچ گئی بات؟ اب ہم بحث نہیں کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ رسول جب تبلیغ کر رہا ہو رسول ہے, اور باقی رسول کی زندگی پرائیویٹ ہے. تو اب رسول کی وراثت ویسی ہوگی جیسی ہر باپ کی بیٹی کے لیے ہوتی ہے. تو یا رسالت بچا لو یا اپنی روایت بچا لو. پہنچ گئی بات؟ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی, تو مان لو کہ رسول جب وحی بیان کرے, شریعت بیان کرے, احکام بیان کرے, حلال بیان کرے, حرام بیان کرے, اس وقت رسول ہے. اور باقی زندگی میں عام بشر ہے. ٹھیک, بڑا پڑھا لکھا اور بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے, اور اس مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی رسول, اب ہم مانے لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ رسول جب قرآن بیان کرے رسول ہے, جب حدیث بیان کرے رسول ہے, جب حلال خدا بیان کرے رسول ہے, جب حرام الہی بیان کرے رسول ہے. باقی زندگی میں رسول نہیں ہے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ رسول جب حلال و حرام بیان کرے گا تو کہاں بیان کرے گا؟ سرکاری جگہ کیا ہے؟ سرکاری جگہ ہے ممبر,
सरकारी जगह है मेहराब, सरकारी जगह है मस्जिद, सरकारी जगह है मैदान जंग। भाई है या नहीं? है या नहीं? मुझे बताओ कि मेरे रसूल की सरकारी जगह क्या होंगी? देखो मेरी भी एक प्राइवेट लाइफ है, मेरी भी एक पब्लिक लाइफ है, मेरी भी एक जाती जगह है, मेरी भी एक सरकारी जगह है। मेरी जाती जगह मेरा घर है, मेरी सरकारी जगह मेरा मिंबर है। ठीक है ना? मेरी सरकारी जगह मेरा मिंबर है, मेरी जाती जगह मेरा घर है। तो अब तुमने रसूल को दो खानों में बांट दिया, आधा नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आधा मोहम्मद सरकारी है, आधा बल्कि आधे से ज्यादा, आधा तो मैं कह रहा हूं, आधे से ज्यादा गैर सरकारी है। अच्छा, तो अब रसूल जब सरकारी बयान देगा तो सरकारी जगह से देगा ना, सरकारी जगह से देगा। अच्छा, तो अब रसूल की सरकारी जगह क्या है? अगर मिंबर से कुछ कहे सरकारी है, अगर मिंबर से कुछ कहे सरकारी है, अगर मेहराब से कुछ कहे सरकारी है, अगर मस्जिद में कुछ कहे सरकारी है, अगर मैदान जंग में कुछ कहे सरकारी है। सरकारी है या नहीं? अब फातिमा आई और रसूल मस्जिद में खड़ा हो गया, ये जाती काम क्यों कर रहा है? पहुंची? बेटी रसूल की घर में नहीं आई थी मिलने के लिए, मस्जिद में आई थी, मस्जिद में आई और रसूल उठ के खड़े हो गए। तो या रसूल अल्लाह, ये सरकारी जगह जाती काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मिंबर से खुतबा दे रहे हैं, हुसैन आया, ठोकर लगी, खुतबे को रोका, उतर के हुसैन को गोद में उठा लिया। सरकारी जगह, सरकारी जगह, भाई तवज्जो रहे, रोक दिया खुतबा जिसमें शरीयत थी, जिसमें हिदायत थी। खुतबा दे रहे हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, हज ऐसे करना है, नमाज ऐसे पढ़नी है, रोजा ऐसे रखना है। खुतबा दे रहे हैं शरीयत पर। मेरे नबी मिंबर से शरीयत पे खुतबा दे रहे हैं, शरीयत पे खुतबा दे रहे हैं। नवासा आ गया, ठोकर लगी, गिर गया, खुतबे शरीयत को रोक दिया, शरीयत को रोक दिया, शरीयत को रोक दिया, हुसैन को उठा लिया। या रसूल अल्लाह, आपने ये क्या किया? अरे तुम समझे नहीं, शरीयत फुरूए दीन है और ये उसूले दीन है। देख लिया, सरकारी जगह थी मस्जिद, ठीक, सरकारी जगह थी मस्जिद, बेटी के लिए खड़े हो गए। सरकारी जगह थी मिंबर, उतर पड़े हुसैन के लिए। और सरकारी जगह थी मेहराब, भाई सुनना, मेहराब। और नवासों ने ईद के दिन कहा कि नाना हमारे पास नाका नहीं है, मेहराब में नाका बन गए। भाई अब मैं अर्ज करूं, मेहराब में नाका बन गए, मिंबर से खुतबा छोड़ के उतर आए, मस्जिद में बेटी के लिए खड़े हो गए। तो सरकारी जगहों पर रसूल जो काम अंजाम दे, सरकारी जगहों पर रसूल जो काम अंजाम दे, उसे तो प्राइवेट का हो, और जो काम लिहाफ में हो वो शरीयत बन जाए। अजीब मरहला फिक्र है, मुझे माफ कर देना, अजीब मरहला फिक्र है। नवासे मचल गए। भाई लिहाफ का भी तो वाकया है ना, सिर्फ मस्जिद का वाकया थोड़ी है। तो लिहाफ शरीयत बन जाए, मस्जिद प्राइवेट हो जाए, ये कौन सी मंतिक है? ठीक है ना? नवासे मचल गए मस्जिद में नवासे मचल गए कि नाना, मदीने के बच्चे, ईद का दिन है, मदीने के बच्चों के पास नाके हैं, हमारे पास नाका नहीं है। नाना हमारे नाके का बंदोबस्त करें। याद है ना वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है, तफसील में नहीं जाऊंगा। नाना हमारे नाके का बंदोबस्त करें। क्या मुश्किल था? रसूल के घर में नाका बंधा हुआ था, आजवा, वो नाका मंगवा देते। भाई प्राइवेट काम है ना, नवासे पूछ रहे हैं,
पूछ रहे हैं कि नाना हमारे पास नाका नहीं है, कहीं से नाका मंगवाइए। तो घर पे बंधा हुआ है नाके हसबा, उसे मंगवा दीजिए। अच्छा उसे नहीं मंगवाते, अली के घर में नाका है, वो मंगवाइए, उन्हीं के बेटे। अच्छा छोड़िए, साहबे किराम में से हर एक के पास नाका है, मंगवा लीजिए। नहीं, रसूल ने अपना नाका भी नहीं मंगवाया, अली का नाका भी नहीं मंगवाया, साहबे किराम में से किसी को भी जहमत नहीं दी कि अपना नाका दे दो, मेरे बच्चों को नाके की ख्वाहिश है। एक मर्तबा हाथ जमीन पर टेके, घुटने मोड़े, और घुटने मोड़ने के बाद कहा, आओ बेटो, आओ बेटो, मैं तुम्हारे लिए नाका हूं। सुनना सुनना, मैं ये काम कहां हो रहा है? मेहराब मस्जिद में। बेटो आओ, मैं तुम्हारे लिए नाका हूं। मस्जिद सरकारी जगह है, रसूल का हुजरा नहीं है, सरकारी जगह है। और कितना गैर संजीदा काम हो रहा है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं। कितना गैर संजीदा काम है कि सरकारी जगह पर मस्जिद में कोई शख्स नाका बन जाए। ठीक है ना? तो नाका बनना गैर संजीदा नहीं है, सड़कों पे मातम करना गैर संजीदा है। समझ रहे हो? जुलूस निकालना गैर संजीदा काम है, मस्जिद में नाका बनना बहुत अच्छा काम है। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। मेरे नबी ने नाका बन के बतला दिया कि इनके लिए जो भी काम करो संजीदा है। ये तय हो गया कि अगर मस्जिद में खड़े हों सरकारी अमल है, ठीक है ना? बेटी के लिए अगर हसनैन के लिए नाका बन जाएं मेहराब में, सरकारी अमल है। अगर मिंबर पे हों और हुसैन के लिए खुतबा छोड़ना पड़े, सरकारी अमल है। मस्जिद, मेहराब, मिंबर। चौथा सरकारी मकाम क्या है रसूल का? मैदान जंग। रसूल है, वहां प्राइवेट लाइफ नहीं है, रसूल है। अब ऐसे में जब वो सरकारी काम अंजाम दे रहा हो, कह दे कि कल मैं रजुल को अलम दूंगा, ये भी सरकारी है। कल मैं रजुल को अलम दूंगा, कर्रार को अलम दूंगा, गैर फर्रार को अलम दूंगा, खुदा और रसूल के दोस्त को अलम दूंगा, खुदा और रसूल के महबूब को अलम दूंगा। तो अब ये जुमला भी सरकारी है, मोहब्बत नहीं है। ठीक? मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में इन्हीं तकरीरों के दौरान कि जब किसी ने पूछा था इस रिवायत के बाद कि या रसूल अल्लाह किसको अलम देंगे, तो कहा था या खुजुहा बिहक्किहा, उसे दूंगा जो अलमदारी का हक अदा कर सके। यानी अब तक अदा नहीं हुआ था,